Okay, so we are going to start with ओके हमने कल ईयर के बारे में पढ़ा था। ईयर एक हेयरिंग ऑर्गन है, साथ में it also maintains the equilibrium of the body. Then it is divided into 3 parts: the external ear, that includes the pinna or the auricle part and the auditory tube. Then we have the middle ear, that includes the 3 bones, the 3 ear ossicles. Then we have the internal ear. Coming to the auricular pinna, then we have the outer margin is called as helix. Just in front of helix is another elevation, that is anti-helix, and at the superior margin there are two crusts, the superior and the inferior crust. Then we have just anterior to the external auditory meters, we have an elevation called as tragus, and in front of tragus is another elevation, that is antitragus. And in between the two these elevation there is a notch, and this notch is called as the intertragic notch. And then we have, and at the lower we have lobule. In between the two crusts, the superior and the inferior, we have fossa triangularis or scaphoid fossa, and in between, in front of external auditory meters, we have concha. So this was all about your pinna. Then we have external acoustic meters. External acoustic meters, we have two parts: the cartilaginous part and the bony part. The cartilaginous part is devoid of some deficiencies or have recess in the lower part, that is called as foramen of Santorini, through which the infection passes from above to below and below to above. This is 1/3 of the whole tube, that is 8 mm in length, while the inner one is the bony part, and the bony part is made up of the temporal bone, and this is 16 mm. At 6 mm lateral to the tympanic membrane is a narrow ridge, forms a narrow ridge which is called as isthmus. In front of the isthmus, the 6 mm part जो होता है, that is called as the foramen, that is called as anterior recess, and at the anterior inferior region, it contains a foramen of Puschke, which is present at least at up to the age of 4, or sometimes it is present even in the adults. Now coming to the blood supply of the external ear, सिर्फ बात external ear की कर रहे थे, इसकी blood supply जो है वो external carotid की कुछ branches से होती है, that is the posterior auricular artery, superficial temporal artery, occipital artery, and maxillary artery. These supplies the sorry, not maxillary, the above three arteries, the branch of external carotid artery supplies the whole this region, the external ear, while the maxillary artery supplies the ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो हमारा ट्यूब था उसको सप्लाई करती है मैक्सिलरी आर्टरी. कमिंग टू द वेनस पार्ट, वेनस ड्रेनेज भी इनके ही हिसाब से होता है, जैसी आर्टरीज होती है करस्पॉन्डिंग वेन्स भी होती है, लेकिन जो ट्यूब है, ट्यूब के जो वेनस ड्रेनेज है, दैट अकर्स इन टेरिगोइड प्लेक्सस, एक्सटर्नल जुगुलर प्लेक्सस और मैक्सिलरी वेन. आइदर ऑफ दीज में किसी में भी वेनस ड्रेनेज हो सकता है. सिर्फ ऑडिटरी ट्यूब के बारे में बात करें, जब हम एक्सटर्नल ईयर यानी पिना की बात करते हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग जो वेन्स होती हैं, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, सुपरफिशियल वेन, ऑसिपिटल वेन, एंड दीज वेन्स दिस सप्लाइज द वेनस ड्रेनेज अकर्स थ्रू द करस्पॉन्डिंग आर्टरी. देन नेक्स्ट द लिम्फेटिक ड्रेनेज. तो हमारे प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर यानी कान के आगे, कान के पीछे कुछ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, एंड वी हैव सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स. सर्वाइकल रीजन जो है आपका, दैट इज द नेक एरिया, वहाँ पे होते हैं सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, वहाँ पे आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है. कमिंग टू द नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई जो है दैट इज थ्रू ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व. हमें इसे इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि आगे का जो हमारा है, जो आउटर ईयर है, एक पीछे की तरफ है, द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट. तो जो एंटीरियर पार्ट है उसमें अपर पार्ट को सप्लाई करता है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, एंड बिहाइंड सप्लाई करता है ग्रेट auricular nerve. These are the branch of the mandibular nerve, and mandibular nerve is the branch of trigeminal nerve, the fifth cranial nerve. While great auricular nerve, ये एक cervical spinal nerve है, जिसका origin होता है C2 and C3, यानी दोनों जब मिलते हैं तब बनती है great auricular nerve. तो कान का जो ऊपर का पार्ट है, this is supplied by auricular temporal nerve,
while the greater नीचे वाला जो part है that is supplied by the great auricular nerve. Next आता है lesser occipital nerve. Lesser occipital nerve is a nerve root C2 से बनता है and it supplies the back area. यानी ये वाला जो area है the root जहाँ पे आपका root of helix है इसके जो back में area है that is supplied by the lesser occipital nerve. Then root of auricle is supplied by auricular branch of vagus. Vagus जो होता है ये जो आपका root वाला area है जहाँ से आपका कान attached है, ठीक है. So it includes the concha, the meatus and posterior में अगर हम आएंगे तो थोड़ा सा that is supplied by the vagus की एक branch होती है auricular nerve that is supplied by this vagus nerve. हमने पढ़ा था हमारे जो ear है उसमें कुछ muscles हैं intrinsic and extrinsic. Still they are vestigial. A vestigial है that doesn't mean कि structurally present है. Structurally they are present, functionally they are absent. So they are supplied by the facial nerve. The muscles to ear में जितनी भी muscles हैं they are supplied by the facial nerve. Facial nerve हम सिर्फ ऐसे directly बोल रहे हैं, ऐसे direct facial nerve कुछ नहीं करती है. Facial nerve की अपनी बहुत सारी branches हैं that supplies each and other every muscle of the ear. ठीक है. तो अगर हम बात करें नर्व सप्लाई की तो नर्व सप्लाई इज डन बाय, अगर हम इस तरह से देखें तो इट इज सप्लाइड बाय ट्राइजेमिनल नर्व, वेगस नर्व एंड फेशियल नर्व. द थ्री नर्व्स आर सप्लाइंग द ओनली द एक्सटर्नल पार्ट. अभी हम सिर्फ एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं. एक्सटर्नल इज सप्लाइड बाय द ट्राइजेमिनल, द वेगस and the facial nerve. And then of course the spinal nerves, one origin arising from C2 level and one arising from combination of C2 and C3, that is the great auricular nerve. ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन किसकी ब्रांच है, कौन सी नर्व का नर्व रूट क्या है, if it is spinal and if it is not spinal then what is the main way. एग्जैक्टली हमें ये याद रखना है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व. अब आप अगर ये भूल जाते हैं सब ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व इट्स ओके, बट आपको मेन याद रखना है. लेकिन अगर याद रखोगे तो अच्छा होगा. Okay, so next we are going to start with the tympanic membrane. Exactly, tympanic membrane एक membrane है. It is semi-transparent. Sometime it is visible in front, sometime it is मतलब पीछे का कभी-कभी दिख जाता है. Not clearly, nothing is visible. So it is called as semi-transparent, and it is neither the part of external ear nor the part of middle ear. It is मैम आवाज जरा भी नहीं समझ में आ रही, बहुत फंस रही है. Okay, मैं तो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इंशाल्लाह सेंड कर दूँगी because I can't help in this case. So coming to the tympanic membrane, okay, now सब कुछ दिख रहा है. नेटवर्क चेंज कर लेती हूँ. Give me a minute. तो नेक्स्ट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात करते हैं. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जिसमें से थिंग्स आर विजिबल बिहाइंड बट नॉट क्लियरली. सो हमें एरोसिकल्स थोड़े थोड़े दिखते हैं, बट वही है जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस होंगे उतना अच्छे से ही दिखेंगे. ठीक है. सो सेम इस सेमी ट्रांसपेरेंट. समटाइम यहाँ पे आपको इनकस का हैंडल भी दिख जाता है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. सो इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट दैट इज सेपरेट्स एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम मिडल ईयर. यानी इसके आगे चले जाओ तो आपका एक्सटर्नल ईयर है, इसके पीछे चले जाएंगे तो आपका मिडल ईयर है. इट इज नेवर कंसिडर्ड between the either in the external ear or in the middle ear. It is a separating membrane that separates the two part of the ear. It is trilaminar. It's called trilaminar because it has three layers: the epithelial layer, the fibrous layer and the mucus layer that we'll take later. ठीक है. सो फर्दर ये जो छोटी सी ट्रांस मेम्ब्रेन है आपकी, सेमी ट्रांसपेरेंट भी थी, ये भी 3 लेयर्ड है. ठीक है. इट इज ओवल इन शेप एज क्लियरली विजिबल है. ओवल है, नॉट एग्जैक्टली, इट इज नॉट सर्कुलर, इट इज ओवल. थिकनेस इसकी है 0.1 mm एंड इसका डायमीटर होता है, दिस इज द डायमीटर. इसका डायमीटर है अप्रॉक्स 8 to 10 mm इन डायमीटर. ओब्लिकली प्रेजेंट है, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी से प्रेजेंट होती है. ठीक है. हम इसका भी एग्जांपल देख लेंगे आगे. It is made up of fibrocartilaginous ring that attach to the tympanic plate. हमने टेम्पोरल बोन में पढ़ा था एक tympanic एरिया होता है. ठीक है. तो tympanic area contains the tympanic plate. So this is the tympanic plate. This whole area is the tympanic plate.
ठीक है। सो दिस टिम्पैनिक प्लेट से ही आके अटैच्ड हो जाती है। अभी किससे अटैच होती है इस चीज को याद रखें। सो दिस इज द टिम्पैनिक पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन का टिम्पैनिक पार्ट इसकी पेरिफेरी में इसके जो मेम्ब्रेन है दैट गेट्स अटैच्ड। और जो मेम्ब्रेन है इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। The larger portion that is pars densa and the smaller portion that is pars flaccida. So this portion is called as pars densa. Pars densa है as clearly visible है. It forms the major part of tympanic membrane. फिर इसके लिए बोला जाता है इट इज थिकेंड एट पेरिफेरी। आप पेरिफेरी देखेंगे तो आपको भी थिक लगेगी। दिस इज द पेरिफेरी। ठीक है। सो पेरिफेरी पे ये मेम्ब्रेन थिक हो जाती है एंड इस थिकेंड पार्ट को बोला जाता है एनुलस टिम्पैनिकस। व्हाट इज एनुलस टिम्पैनिकस? एनुलस टिम्पैनिकस इज द थिक पेरिफेरी ऑफ द पार्स टेंसा। ओनली पार्स टेंसा। पार्स टेंसा नाम जो है वो इसीलिए दिया है क्योंकि दिस इज टेंस्ड, लूज नहीं है, बहुत ही डिस्टेंडेड है। ठीक है। सो दिस इज पास टेंसर एरिया जो पेरिफेरी पे जाके थोड़ा सा थिक हो जाता है एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड दिस अटैचमेंट पार्ट और थिकन पार्ट इज कॉल्ड एज एनुलस टिम्पैनिकस। एनुलस टिम्पैनिकस हो गया एंड देन जो इसके सुपीरियर मार्जिन है, सुपीरियर एंड दिस इज इंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन जो ऊपर है इसके, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स अ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर। ये छोटे छोटे से इसमें फोल्ड आ जाते हैं, एक इधर से फोल्ड आता है एक इधर से। दिस इज द इंटीरियर वन एंड दिस इज द पोस्टीरियर वन। ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट है कि दिस इज एंटीरियरली प्रेजेंट एंड दिस इज पोस्टीरियरली प्रेजेंट। ठीक है। सो दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड एज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड्स। दे आर कॉल्ड मेल्यूलर फोल्ड्स क्योंकि यहाँ से मेलियस का अटैचमेंट स्टार्ट होता है। सो दीज एंटीरियर सुपीरियर पे जो आपकी पास टेंस है इसकी सुपीरियर मार्जिन पे दो फोल्ड्स बनते हैं। दीज टू फोल्ड्स आर कॉल्ड एज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेलिलर फोल्ड्स। नेक्स्ट आता है आपकी प्लास फ्लैसिडा। प्लास फ्लैसिडा एज अ नेम सच है। फ्लैसिड का मतलब वैसे तो खाली होता है बट यहाँ खाली इसका मुराद खाली नहीं है, इसका मुराद है कि ये लूज है, ये बहुत ज़्यादा टेंस्ड नहीं है। सो जो आपके पास फ्लैसिडा है दैट इज प्रेजेंट अबव बिटवीन द टू फोल्ड्स। जो मेल्यूलर फोल्ड थे दोनों मेल्यूलर फोल्ड से स्टार्ट होकर एक फोल्ड से स्टार्ट होकर दूसरे फोल्ड पे आके अटैच होती है। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पार्ट फ्लैसिडा जो बहुत ही माइनर पोर्शन बनाती है आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। ओके। इस पार्ट फ्लैसिडा को हम एक और नाम देते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज शार्पलेस मेम्ब्रेन। कमिंग टू द सर्फेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो इसकी दो सर्फेस हैं जो आपको कान से बाहर से दिखेगी। ठीक है। ये ऑडिटरी ट्यूब आ रहा है जो बाहर से आपको दिखेगी, तो ये वाला सामने आपको दिख रहा है, दिस इज द लेटरल सर्फेस। ठीक है। क्योंकि ये बाहर की तरफ है और यहाँ अंदर की तरफ जा रहा है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इनर सर्फेस। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की दो सर्फेस हैं, द लेटरल वन दैट इज आउटर टुवर्ड्स द एक्सटर्नल ईयर एंड द मीडियल सर्फेस दैट इज इनवर्ड टुवर्ड्स द मिडिल ईयर। अब जब हमने बात की है इसकी तो हम बात करते हैं कि शेप की। तो जो ये शेप होता है तो हम जो लेटरल है, लेटरल सरफेस यानी बाहर की तरफ जो है, दिस इज समवट कॉनकेव। ठीक है। लेटरल सरफेस जो है जो हमको बाहर से दिखेगा दैट इज समवट कॉनकेव, व्हाइल मीडियल ऑफ कोर्स एक सरफेस अगर कॉनकेव है तो दूसरी सरफेस अपने आप कॉन्वेक्स हो ही जाएगी। सो दिस इज द कॉन्वेक्स सरफेस। जब कॉन्वेक्सिटी की बात करते हैं सो एक पॉइंट होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्वेक्सिटी होती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अम्बो। So this part is called as Ambo region. What is exactly Ambo? The maximum point of convexity जो होती है जिस point पे, that point is called as Ambo. जो आपका मेलियस जो आपकी बोन है इसमें हैंडल होता है, ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसका स्ट्रक्चर। से इसके हैंडल जो होता है वो स्टार्ट होता है मेल्युलर फोल्ड्स के अप टू अम्बो। ठीक है। जैसा कि क्लियरली आपको यहाँ से मिल रहा है, दीज आर द टू फोल्ड्स। इट्स नॉट द मेलियस जो है वो आपका पास प्लेसिडा पे अटैच नहीं होती है, इट इज अटैच फ्रॉम द टू फोल्ड बिटवीन द टू फोल्ड। ये इसका एक लेटरल प्रोसेस है जो आपको थोड़ा बाहर दिख रहा है। ठीक है। यहाँ से अटैच होती है एंड कम्प्लीटली आके अम्बो तक अटैच रहती है। एक टर्म यूज होता है कोन ऑफ लाइट। कोन तो आप समझते हैं, कोन इज ट्रायंगुलर कोन। ठीक है। कोन ऑफ लाइट एग्जैक्टली जब भी हम अंदर लाइट डालते हैं, ठीक है, जब भी हम अंदर इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो हमको एंटीरो इन्फीरियर, ये एंटीरियर सरफेस थी इसकी, एंटीरियर पार्ट है नॉट सरफेस, दिस इज द लेटरल सरफेस विद कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द एंटीरियर पार्ट एंड द पोस्टीरियर पार्ट। तो जो एंटीरियर पार्ट है एंटीरो इन्फीरियर, एंटीरियर पार्ट के इन्फीरियर में एक आपको ना यहाँ पे
एनिमेटेड कुछ लाइट प्रोजेक्शन होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक अलग से ब्राइटनेस दिखेगी, दैट ब्राइटनेस इज कॉल्ड एज कोन ऑफ लाइट। और वो ब्राइटनेस इसलिए दिखती है बिकॉज ऑफ द कॉन्वेक्सिटी, ठीक है। सब रिफ्लेक्ट होके इसी पे आके एब्जॉर्ब होता है, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कोन ऑफ लाइट। कोन ऑफ लाइट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बस ये याद रखना है, दिस इज प्रेजेंट ओनली एट द एंटीरो इंफीरियर पार्ट। अभी याद करने की चीज़ नहीं है, जब आप फाइनल में जाएंगे और खुद एग्जामिन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। आपको वहाँ पे कुछ ब्राइटनेस दिख रही होगी, तो यू मस्ट नॉट गेट कंफ्यूज, दैट इज अ नॉर्मल थिंग, दैट इज द कोन ऑफ लाइट एरिया। नेक्स्ट कमिंग टू द लेयर ऑफ टिम्पैनिक में, ऐसे हमने भी पढ़ा था, इट्स ट्राइलेमिनर, यानी इसकी 3 लेयर है। सो द आउटर लेयर इज क्यूटिकुलर लेयर, दैट इज एपिथेलियल लेयर। देन इंटरमीडिएट इज अ फाइब्रस लेयर, जिसमें 2 फर्दर लेयर होती है। एक रेडिएटिंग लेयर होती है, जो ऐसे ऐसे आपको रेडिएशन दिख रहे हैं, ठीक है, अंबो से ही सारे रेडिएशन होते हैं। एंड देन वी हैव इनर सर्कुलर लेयर which is mostly present on the periphery. Then the innermost layer is the mucus layer that contains ciliated columnar epithelium. So these are the 3 layers of the tympanic membrane. Coming to the blood and venous supply, so blood supply अगर हम देखें तो इसकी 2 हमने डिवाइड किए थे surface, lateral surface, that is the towards the external ear, that is supplied by the deep auricular artery, a branch of maxillary artery. And then we have medial surface, जो अंदर वाला part है, that is towards the medial ear, that is supplied by the anterior and the posterior tympanic artery. They're also a part of maxillary and the stylomastoid artery. Further अगर हम बात करें so it's a branch of external carotid artery only. ठीक है, so these are supplied by deep auricular artery and anterior and posterior tympanic artery. Venous drainage जो है इसका होता है external jugular vein में, lateral surface का, और medial surface का होता है transverse sinus, that is present in your head. आपने पढ़ चुके हैं what is transverse sinus, and then the pterygoid venous plexus. Then we have nerve supply. Nerve supply की हम करते हैं lateral surface पे. Lateral surface को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, the anterior and the posterior one. The anterior is supplied by the auriculotemporal nerve. What is auriculotemporal nerve? It's a branch of mandibular nerve, which is a branch of trigeminal. So trigeminal is supplying the anterior part, while posterior half is supplied by the auricular branch of vagus. तो अगर हम देखें तो lateral surface जो आपकी है बाहर की, that is toward the external ear, that is supplied by 2 nerves. One is the trigeminal, the anterior part is supplied by the trigeminal, and the posterior part is supplied by the vagus nerve. Coming to the medial surface is innervated by tympanic branch of glossopharyngeal nerve, यानी जो towards the middle ear है, that is supplied by a single nerve, that is the glossopharyngeal nerve. I think this is the 9th cranial nerve, no? Glossopharyngeal nerve. And the glossopharyngeal की अपनी एक branch है, that is tympanic branch. As the name suggests, tympanic membrane को कर रही है, so it is supplying the medial surface. So we have 3 cranial nerves that supplies the tympanic membrane: the trigeminal nerve, the vagus nerve, and the glossopharyngeal nerve. So this was all about your today's lecture. Inshallah, tomorrow we'll start with the middle part of the brain. किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनी क्वेरी